Hello aspirants. So we are meeting after a long gap. So far we have seen many topics in our video lectures. We have seen communications and systems. We have seen electrical machines, transformers. We have seen how to tackle general ability test. We have seen an overview of electrical measurement and measuring instruments. So today we will be taking a new topic, and that is from the control system, which is one of the most beloved topics of electrical and electronics engineers. So let us see which topic we will be taking today in the control systems. So the topic which I have chosen for you people is the Nyquist stability criterion, which is very important for both the GATE and engineering services examination. So let us begin to see how the Nyquist criterion develops and how it works out, and what type of questions you can expect in your exam from Nyquist stability criterion. So for developing Nyquist criterion, first of all consider a closed loop transfer function, Ys upon Rs. This is a very common equation, all of you must be aware of it. Gs upon 1 plus GSHS, negative feedback system. Let us assume GSHS can be expressed, this function GSHS can be expressed by a ratio of finite algebraic polynomial in S. Okay, so GSHS can be expressed as K S plus Z1 dash, Z2 dash, so on till Zn dash. Okay, a polynomial, algebraic polynomial in S upon S plus P1 plus P2 and so on till Pn. Z1 dash, Z2 dash, Zn dash are the zeros, P1, P2, Pn are the poles. Now for equation number 1, the roots of the characteristic equation can be found by putting the denominator to 0. That is 1 plus GSHS is equals to 0. This will give you the roots of the characteristic equation. So GSHS is this. So 1 plus GSHS will be 1 plus this polynomial in S, K S1 plus S plus Z1 dash, Z2 dash and so on Zn dash upon S plus P1, P2 and so on till Pn. So when you will take the LCM and all those things, 1 plus GSHS will come out to be S plus Z1, Z2 and so on Zn upon S plus P1, P2 plus Pn. Here it is Z1 dash, Z2 dash, but here in 1 plus GSHS it is Z1, Z2, Zn, because the expression is different in the numerator. Okay, now see equation number 2 and equation number 3. The poles P1, P2 and Pn, the denominator of GSHS and the denominator of 1 plus GSHS is same. Okay, so the poles of closed loop function 1 plus GSHS is same as the open loop poles of GSHS. इसीलिए आपको याद होगा जब नाइक्विस्ट क्राइटेरियन हम लगाते हैं तो सबसे पहले GSHS जो हमें फंक्शन दिया होता है उसके पोल्स देख लेते हैं कि कितने राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 प्लस GSHS के पोल्स और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स सेम हैं, और 1 प्लस GSHS का जो जीरोज़ हैं, 1 प्लस GSHS के जीरोस कैसे निकालेंगे? 1 प्लस GSHS तो 0 रख के निकालेंगे. 1 प्लस GSHS का जो जीरो है और क्लोज लूप फंक्शन का जो पोल है वो सेम है. ओके, लेट अस सी हियर. पोल्स ऑफ 1 प्लस GSHS आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ GSHS. अभी हमने देखा, ठीक है, दैट इज ओपन लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम. एंड जीरोज ऑफ 1 प्लस GSHS आर आइडेंटिकल टू द क्लोज लूप पोल्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS है, तो इसके पोल्स कैसे निकालेंगे? इसको 0 पुट करके, और 1 प्लस GSHS के जीरोज भी ऐसे निकालेंगे, इसको 0 पुट करके. सो ये दोनों सेम होंगे. जीरोज ऑफ 1 प्लस GSHS इज सेम एज द पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. So for closed loop system to be stable, the zeros of 1 plus GSHS must lie in the left half of the S plane. ठीक है, S plane के लेफ्ट हाफ में, मतलब इस तरफ जो है आपके 1 प्लस GSHS के जीरोस लाई करने चाहिए फॉर द क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल. एक चीज़ और होती है, अभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. ओपन लूप अनस्टेबल सिस्टम में लीड टू क्लोज लूप स्टेबल ऑपरेशन. अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि ओपन लूप सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है और क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पूछी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल होगा अगर ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल है. ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल होने के बावजूद क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो सकता है. नाउ लेट अस सी हाउ वी डेवलप द Nyquist stability criterion. We consider a rational function 1 plus GSHS is equals to QS, a polynomial in S, is equals to S plus Z1 upon S plus P1. This is a simple function. Let us consider equation number 1. Now
Z1 इज दिस, मतलब 0 माइनस Z1 एंड पोल माइनस P1 इज दिस. वी हैव कंसिडर अ कंटूर, दिस इज अ कंटूर, ठीक है. सपोज τ1, आई नेम द कंटूर, दिस इज अ τ1. अब वन टाइम ट्रेवर्सल along this contour in the clockwise direction, मतलब इधर से शुरू करिए, इस पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट इज P से शुरू करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एक ट्रेवर्सल करने पे पूरा वापस P तक आने में Z1 का एंगल जो है वो -2π है, ठीक है. इधर से जैसे आप चलेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, वापस आएगा. तो आप देखेंगे कि Z1 का जो एंगल है, जो चेंज हो रहा है एंगल, वो -2π हो रहा है. इसी तरीके से पोल का जब आप करीब चलेंगे और पूरा वापस P तक पहुंचेंगे तो चेंज इन एंगल विल बी -2π. सो नाउ द चेंज इन एंगल विल बी एंगल ऑफ Z1 0 माइनस एंगल ऑफ P1, एंड दिस इज वाइल वी आर ट्रेवर्सिंग द कंटूर τ1. So -2π minus of -2π, this will be 0. So changing angle is 0. Suppose this is figure number 2. Here pole तो ये enclose कर रहा है ये contour. Again this contour is τ1. Pole is been enclosed by this contour, but Z1 is not been enclosed by this contour. Z1 इसके बाहर लाई कर रहा है. So Z1 का एंगल 0 होगा क्योंकि ये इसके बाहर लाई कर रहा है. P1 का फिर से इस पॉइंट P से चलना शुरू करिए और पूरा एक क्लॉकवाइज ट्रेवर्सल के लिए change in angle will be -2π. This is P1. So change in angle will be 0 minus of -2π, that is 2π. इसको जनरलाइज कर लीजिए. मान लीजिए कई सारे पोल्स हैं और कई सारे जीरोज हैं, कुछ बाहर लाई कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर लाई कर रहे हैं. सो द चेंज इन एंगल विल बी P माइनस Z इंटू 2π, ठीक है. नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज इंटू 2π, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था. यहाँ पे एक पोल था और एक जीरो था, तो 1 - 1 इंटू 2π 0 आ गया था. यहाँ पे 0 था और एक पोल था, तो 0 - 1 इंटू 2π आ गया था, ठीक है. नाउ ये तो हमने S डोमेन में बात कर ली. अब अगर हम इस S डोमेन को QS डोमेन में इसको ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, मैप करें, तो QS डोमेन में एक कंटूर का टिपिकल कंटूर इस टाइप का होता है. ये कई बार ओरिजिन के इंसर्कल करेगा. मान लीजिए ये मैंने कंसिडर किया है कंटूर जो एक बार और ये 2 बार, ये 2 बार जो है ये ओरिजिन को इंसर्कल कर रहा है. सो यहाँ पे हमने देखा था कि एक बार ओरिजिन को इंसर्कल करने पे चेंज इन एंगल -2π आता है, ठीक है, या एंगल -2π आता है. यहाँ पे ये यहाँ से शुरू करिए तो ये एक पॉइंट एक बार, और फिर यहाँ से शुरू करिए तो ये 2 बार क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट करने पे चेंज इन एंगल आएगा वो -4π का आएगा, ठीक है. तो 2π P माइनस Z जो हमने पहले भी डिराइव किया है इक्वल्स टू -4π रख दीजिए. तो Z माइनस P इज इक्वल्स टू 2. इन जनरल Z माइनस P विल बी इज इक्वल्स टू N. N जो होगा वो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट होगा जो ये QS प्लेन में बनाएगा अबाउट द ओरिजिन, ठीक है. नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन. अब आ जाइए नाइक्विस्ट कंटूर पे कि हम कंटूर कैसे लेते हैं. यहाँ तो हमने एक ऐसे ही टिपिकल जनरल कंटूर हमने कंसिडर कर लिया था. नाइक्विस्ट अपना कंटूर कंसिडर करते हैं इंटायर राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, ठीक है. ये -J∞ से 0 से +J∞, और ये इंटायर हाफ जो कि एक सर्कल सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r e⁻j∅, वेयर r इज़ वेरी लार्ज. दिस इज़ अ वेरी लार्ज सर्कल क्योंकि ये पूरा इंटायर लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी इंटायर राइट हैंड साइड जो है वो ये कवर कर रहा है. सो r टेंडिंग टू इन्फिनिटी r e⁻j∅. अगर कोई पोल GSHS का 0 पे लाई कर रहा है तो ये 0 हम छोड़ देते हैं, ठीक है. कंटूर इस तरीके से आ जाता है. ये 0 प्लस से J∞, लार्ज सर्किल विच इज़ कवरिंग द एंटायर राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन, और फिर -J∞ से J0 माइनस, ठीक है. और ये जो स्मॉल सेमी सर्कल बनाइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ρe⁻j∅, वेयर ρ टेंड्स टू 0 बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेमी सर्कल. और फाई कहाँ से जाएगा, फाई वेरी करेगा -90 से 0 से +90, ओके, -90 टू 0 टू +90. दिस इज द नाइक्विस्ट कंटूर. और दूसरी चीज़ आती है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट अभी मैंने बताया n जो है वो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट है दैट द कंटूर इज मेकिंग अबाउट द ओरिजिन. लेकिन
1 प्लस जी एस एच एस जब आप प्लॉट करेंगे तो इसका ओरिजिन कहाँ आएगा, जब जी एस एच एस इज इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। सो जी एस एच एस का तो ओरिजिन 0 पे आएगा, लेकिन 1 प्लस जी एस एच एस का ओरिजिन -1 पे आएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई ये ब्रैकेट में मैंने दिखाया है, ये -1 0 है, -2 -1 है और 0 1 है, ठीक है। इधर शिफ्ट हो जाएगा -1 से। सो -1 प्लस J0 पॉइंट विल बी डिजिग्नेटेड एज द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ नाइक्विस्ट क्राइटेरियन ये हमने पहले देख लिया है, Z माइनस पी इज इक्वल्स टू n कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। नाउ n इज द नंबर ऑफ क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट्स ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0, ओरिजिन नहीं -1 प्लस J0, क्योंकि हम 1 प्लस GSHS प्लॉट कर रहे हैं, मेड बाई GSHS लोकस ऑन नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है तो क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट के लिए n 1 होगा, एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट के लिए n -1 होगा। P is the number of poles of GSHS and therefore of 1 plus GSHS enclosed by Nyquist contour, और Nyquist contour क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। हमने देखा था शुरुआत में कि GSHS और 1 प्लस GSHS के जो पोल्स थे वो सेम थे, तो कोई भी ऐसा पोल GSHS का जो कि राइट हैंड साइड में लाई कर रहा हो, दैट विल बी इक्वल्स टू P, और Z क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 1 प्लस GSHS enclosed by the Nyquist contour, दैट इज इंटायर राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। नाउ स्टेबिलिटी डिमांड क्या करती है कि जो जीरोज हैं 1 प्लस GSHS के, वो एक भी जीरो राइट हैंड साइड में ना लाई करे, ठीक है। तो Z शुड बी इक्वल्स टू 0 और N शुड बी इक्वल्स टू -P। दिस इज द Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू लुक सम न्यूमेरिकल्स of this Nyquist stability criterion. Consider a feedback system with open loop transfer function GSHS is equals to k upon s into s plus 3 into s plus 5. Find the range of values of k for the system to be stable. Also draw the Nyquist plot. कन्वेंशनल में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, और क्वेश्चन आएगा तो पूरा 15 मार्क्स का आएगा। लेट अस सी कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप s की जगह जी ओमेगा रख दीजिए, ठीक है। तो जी ओमेगा के अपॉन दिस थिंग, इसका मॉड ले लेंगे तो k अपॉन ओमेगा √9 प्लस ओमेगा स्क्वायर √25 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ इसका नाइक्विस्ट कंटूर सबसे पहले बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए GSHS का जो है एक पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसका कंटूर कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा ओरिजिन छोड़ के ये और इंटायर हाफ ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। ये C1 कंटूर मान लीजिए, सी पार्ट का कंटूर का C1 पार्ट, ये C2 मान लीजिए, ये C3 मान लीजिए, ये C4 मान लीजिए। तो अलोंग C1 हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 टू ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो एंगल ऑफ जी ओमेगा क्या होगा, ओमेगा है s 1/s का टर्म है तो वो -90 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, -tan इनवर्स ओमेगा बाई 3 -tan इनवर्स ओमेगा बाई 5। एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका इन्फिनिटी होगा, और एंगल क्या होगा, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, सो एंगल विल बी -90। सो फर्स्ट पॉइंट इज इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, और एंगल -90 दैट इज -270, सो 0 एट एन एंगल ऑफ -270 डिग्री। अब अलोंग C2 यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अलोंग C2 पुट S इज इक्वल्स टू r e टू द पावर j थीटा वेयर r इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब आप इस इक्वेशन में s की जगह r e टू द पावर j थीटा रखेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि r e टू द पावर j थीटा बहुत बड़ा है, तो 3 और 5 के कंपेरिजन में 3 और 5 को निगलेक्ट कर दीजिए, तो r क्यूब e टू द पावर 3j थीटा आएगा डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि r जो है वो बहुत बड़ा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू 0। सो ये जो बड़ा वाला सर्किल है जो एंटायर राइट हैंड साइड को इनक्लोज कर रहा है वो 0 पे मैप हो गया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब C3 जो है वो C1 की मिरर इमेज होगी, क्योंकि हम यहाँ पे 0 प्लस 0 से प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस 0 जा रहे हैं। सो C3 विल बी एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ C1। अब C4 जो है ये वाला यहाँ तक आ गए। अब वापस C4 जाने के लिए पुट S इज इक्वल्स टू रो e टू द पावर j थीटा वेयर रो टेंडिंग टू 0 इस स्मॉल सर्कल के लिए जो ओरिजिन पर हमने छोड़ा है, वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम -90 टू 0 टू +90। जब इसमें आप पुट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे k अपॉन रो e टू द पावर -j थीटा आ जाएगा,
अब एनीथिंग अपॉन ये रो टेंडिंग टू जीरो है, तो एनीथिंग अपॉन जीरो विल बी इन्फिनिटी। और एंगल अब माइनस जे थीटा आ गया, माइनस थीटा आ गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू -90 से 0 से +90 वेरी कर रहा था। सो माइनस थीटा 90 से 0 से -90 वेरी करेगा, ठीक है। सो एंगल विल वेरी फ्रॉम +90 टू 0 टू -90। अभी भी नाइक्विस्ट प्लॉट आप नहीं बना सकते क्योंकि आपको सारे कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस को ये नाइक्विस्ट प्लॉट कहाँ कट करेगा। सो उसको करने के लिए जी ओमेगा एच ओमेगा रख दीजिए, इसको पूरा सॉल्व करिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कीजिए, ठीक है, रेशनलाइज करिए -j करके। अब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप, ठीक है। ये सॉल्व करने में गलती होती है। अब इसका जो सॉल्व करके जो न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर का इमेजिनरी पार्ट आप 0 कर दीजिए। दिस विल यील्ड वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच नाइक्विस्ट प्लॉट विल कट द नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है। सो जब आप इसको 0 करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, तो 15 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ओमेगा प्लस माइनस √15 आएगा। इस ओमेगा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में इसमें इसके मैग्नीट्यूड वाले इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा 0.0083 k। नाउ वी विल ड्रॉ द नाइक्विस्ट प्लॉट। सो सी दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओमेगा टेंडिंग टू 0। सो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री ये है जो ये पॉइंट हमने निकाला था, और इसको जाना है 0 एट एन एंगल ऑफ -270 डिग्री कटिंग द नेगेटिव रियल एक्सिस। सो ये ऐसे जाएगा, नेगेटिव रियल एक्सिस कट करेगा और 0 एट एन एंगल ऑफ -270 पे टर्मिनेट करेगा। इस एक्सिस को ये नहीं कट करेगा क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए जब रियल पार्ट को हम 0 कर रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये इमेजिनरी एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, क्योंकि रियल पार्ट कट करने पे रियल पार्ट को 0 पुट करने में इस इक्वेशन में हमें ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि ये नाइक्विस्ट प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को नहीं कट करेगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जब आप प्लॉट करेंगे अलॉन्ग C2 तो ये तो 0 ही हो गया था, तो ये 0 पे ही रहेगा। C3 इसकी मिरर इमेज होगी, इस पार्ट की मिरर इमेज होगी, ये चली जाएगी। और C4 जो होगा, C4 इन्फिनिटी है और एंगल वेरी कर रहा है +90 से 0 से -90। सो दिस विल बी अ वेरी इनफाइनाइट सर्किल एंड एंगल विल वेरी फ्रॉम +90 टू 0 टू -90। 0 -90 जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंगल वेरी करेगा 0 -90 -180 -270। उल्टा जाएंगे तो 0 +90 +180 +270। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या डिमांड करती है? अब इस इक्वेशन में देखिए GSHS की जो इक्वेशन है इसमें P इज इक्वल्स टू 0 है। इसका कोई भी पोल जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं लाई कर रहा है, सारे पोल 0 -3 -5 सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में ही लाई कर रहा है। सो फॉर दिस P इज इक्वल्स टू 0, सो Z माइनस P इज इक्वल्स टू N, सो Z इज इक्वल्स टू N। स्टेबिलिटी डिमांड्स की Z जितने भी जीरोज जो हैं 1 + GSHS के जो RHS में लाई कर रहे हैं वो 0 होने चाहिए। और फॉर Z टू बी 0 द नाइक्विस्ट प्लॉट शुड नॉट इनसर्किल द क्रिटिकल पॉइंट -1 + J0, दैट इज N शुड बी 0। Z इज इक्वल्स टू N है तो Z इज इक्वल्स टू 0 होने के लिए क्या होगा? N इज इक्वल्स टू 0, मतलब नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट ऑफ द पॉइंट -1 + J0 शुड बी इक्वल टू 0। ये कब होगा? ये पॉइंट जो है ये पॉइंट -0.0083 k है, हमने निकाला अभी इक्वेशन में। सो दिस पॉइंट 0.0083 k दिस शुड बी लेस देन 1, मतलब -1 + J0 जो है इसके बाहर लाई करे तो इन नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट विल बी 0, ठीक है। So 0.0083 k should be less than 1. So k should be less than 1 upon 0.0083 k. So k should be less than, जब 1 upon इसको सॉल्व करेंगे आप तो k should be less than 120.48। यहाँ तक करेंगे तब आपको 50 में से 15 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को आपको फिर से देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व हुआ है, 2-3 बार देखना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। सो वील कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।